Hello dear students, welcome back. Today we will study our next lesson of class 6 English reader, that is a Masai home. So what is Masai? Masai is the name of a tribe. So what is the meaning of tribe? Tribe is a group of people who live together and share a common language and culture. Okay? Have you heard about Bhil people? है ना? In Chhattisgarh also many tribes are there. So Masai is also a name of tribe. So how they live, how they survive. Okay, so we will study in this chapter. Yes, look at this picture. This is the picture of Masai's people. Look how their dressing sense is. उनका dressing sense कैसा होता है, ठीक है? उनका costume, culture. So we will study in this chapter. Look, this is another type of tribe, and basically we are going to study about Masai. The first picture, this picture is showing about the Masai, and this is another tribe. Yes, look, in your reader book, this picture is there. There is a home, Masai home, cattle, a cow is there, goats, and it is a home. Now let's study the chapter. A Masai home. Masai is a tribe that live in East Africa. Masai एक tribe होती है that lives in East Africa. The Masais like to live in small, where? The Masais like to live in small traditional houses on the grassland plains near their cattle or their fields. Yes, first the Masais are found in East Africa. The Masais like to live in small traditional houses, है ना? Yes, have you seen this picture? Look at this picture, traditional house. Now can you see these type of houses around you? No. Now you can see the houses made of bricks and concrete, cement, but their houses are very traditional. So now let's study. ट्रेडिशनल मीन्स लॉन्ग टाइम से, मीन्स जैसे लॉन्ग टाइम से जो ट्रेडिशनल को पारंपरिक उसको फॉलो करते जा रहे हैं, जैसे उनके जो एंसेस्टर्स रहते थे, उनके जो फैमिली के एल्डर मेंबर्स होते थे, वो जैसे लिव करते थे जिस टाइप के होम में, वैसे ही वो क्या करते हैं, उसी ट्रेडिशन को फॉलो करते जाते हैं और वैसा ही हाउस बनाते हैं. ओके, सो हाउसेस ऑन द ग्रासलैंड. ग्रासलैंड प्लेन्स मतलब जिसमें ऐसा प्लेन जिसमें ग्रास होती है, ग्रासलैंड, उसमें वो अपना हाउस बनाते हैं और उसके नियर ही उनके कैटल रहते हैं. कैटल में उनके जो एनिमल्स होते हैं, पेट एनिमल्स, और देयर फील्ड्स, और उसके आसपास ही क्या होगा, उनका फील्ड्स होगा. व्हाट आर फील्ड्स? फील्ड जिसमें हम फार्मिंग करते हैं. ओके, द मसाई वुमेन बिल्ड देयर ओन होम्स. जो मसाई वुमेन होती है वो अपना होम खुद ही बिल्ड करती हैं. ओके, how they build their home. Now look. Yes, first they draw the shape of the house, a rectangle on the ground. Okay, first they draw the shape of the house, a rectangle on the ground. They make a frame. Then after they make a frame by weaving together branches and twigs. वीविंग करना मीन्स बुनना. जो ब्रांचेस होती है, ब्रांचेस ऑफ ट्रीज, एंड ट्विग्स. ट्विग्स मीन्स जो स्मॉल स्टेम्स होते हैं, जो स्मॉल स्टेम्स होते हैं ना, ट्री के स्टेम्स, उनको लेती हैं. एंड ब्रांचेस, जो ट्री में ब्रांचेस होती है जिसमें आपकी लीव्स ग्रो करती हैं, उन्हें लेकर वो वीविंग करती हैं एंड एक फ्रेम प्रिपेयर करते हैं. ओके, फ्रेम बनाते हैं. कैसा फ्रेम? रेक्टेंगुलर फ्रेम, रेक्टेंगल शेप का. देन दे पैक ग्रास एंड डंग ओवर आउटसाइड. अब उसको ग्रास किससे कवर करते हैं? ग्रास एंड डंग से. टू कीप द बिल्डिंग ड्राई, ताकि वो बिल्डिंग कैसी हो सके? ड्राई हो सके. ओके, बिकॉज द वेदर इज मॉइस्ट. मॉइस्ट मीन्स स्लाइटली वेट. थोड़ा थोड़ा वेदर कैसा होता है वहाँ? वेट होता है, गीला होता है, नमी होती है. सो इट इज नेसेसरी सो टू कीप द बिल्डिंग ड्राई. तो ड्राई करने के लिए किसका यूज करते हैं? किस मटेरियल का पैकिंग करने के लिए? ग्रास
and dung. Dung you all know? Okay, cow's dung. Yes. There is just one room inside a Masai house. So, inside a Masai house there is just one room. केवल एक ही रूम होता है, एक ही रूम का पूरा हाउस बना होता है. Almost six people sleep together in one large bed made of large branches covered with hide. So, almost six, कितने? 6 people आपके बेड में सो सकते हैं. और बेड किससे बना होता है? लार्ज ब्रांचेस कवर्ड विथ हाइड. हाइड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड हियर? एन एनिमल स्किन रिमूव्ड टू मेक लेदर एटसेट्रा. एनिमल की जो स्किन रिमूव कर लेते हैं ना, उससे को क्या कर देते हैं, वहां पर कवर कर देते हैं ब्रांचेस के ऊपर, और उससे उनका क्या हो जाता है, बेड रेडी हो जाता है. और उस बेड में, उस लार्ज बेड में ऑलमोस्ट 6 पीपल स्लीप कर सकते हैं. ओके. द मदर एंड चिल्ड्रन स्लीप इन एन इनर कॉर्नर ऑफ द हाउस. जो मदर्स होती हैं, ओके, फैमिली की मदर, और उनके जो चिल्ड्रन होते हैं, दे स्लीप, कहाँ सोते हैं वो? इनर कॉर्नर. कॉर्नर जो होता है अंदर में, वहां पर. ओके, घर के. यस. इन द सेंटर ऑफ द हाउस इज अ फायर प्लेस. ठीक है, इन द सेंटर ऑफ द हाउस इज अ फायर प्लेस. एक फायर प्लेस बनाते हैं क्योंकि कुकिंग करनी है, वार्मथ चाहिए, गर्मी भी चाहिए. सो देयर इज अ फायर प्लेस वेयर इन द सेंटर ऑफ द हाउस. फायर बर्न्स देयर. फायर वहाँ बर्निंग होती है, बर्न्स करते हैं. ओके. इट इज यूज्ड फॉर कुकिंग, वार्मथ एंड लाइट. सो फायर इज यूज्ड फॉर व्हाट? फॉर कुकिंग, वार्मथ एंड लाइट. कुकिंग करने के लिए, वार्मथ मीन्स गर्मी, फायर से गर्मी मिलती है, उनको हीट मिलती है, एंड नेक्स्ट इज लाइट मिलती है. ओके. देयर आर नो विंडोज इन द मसाई हाउस. ओके, कोई भी विंडो नहीं होती है. ओनली वन ओपनिंग इज केप्ट टू लेट लाइट इन एंड स्मोक आउट. केवल एक ही ओपनिंग होती है. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज योर हाउस. सो एक गेट होगा, वही विंडो का वर्क करेगा, वही आपका गेट का वर्क करेगा. सो उसी विंडो से या उसी ओपनिंग से आपका क्या होता है, लाइट अंदर आ सकती है, लाइट इन एंड स्मोक आउट. जो पूरा फायरिंग होती है, तो आपका क्या होता है, फायर से आपकी स्मोक जनरेट होती है, स्मोक प्रोड्यूस होती है. तो उसे आउट करने के लिए केवल वन ओपनिंग होती है, जो कि उनका जो एंट्रेंस और एग्जिट गेट वो एक ही होता है, कोई भी विंडो नहीं होती है. डन. सो लुक एट दिस पिक्चर. सो इट इज अ पिक्चर ऑफ मसाई हाउस एंड इट इज अ बिग ओपनिंग. एक ओपनिंग है ना, जिससे आपकी लाइट इन कर सकती है, एंड फायर और स्मोक आउट. ओके. यस. सो नेक्स्ट, cattle are an important part of the Maasai family because cattle से ही वो क्या करते हैं, अपनी फार्मिंग करते हैं फील्ड्स में. सो कैटल मीन्स जो उनके पेट एनिमल्स लाइक काउस है ना, गोट्स, ये उनके बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, उनके फैमिली मेंबर्स की तरह होते हैं. कैटल्स में क्या क्या होते हैं उनके? यंग काफ्स. ओके, यंग काफ्स एंड गोट्स. Okay, young calves and goats. So what is calf? Calves means CALF. Calf and CALVES. Calves. This is your singular number. This is your plural number. So calf is the baby of cow. Cow के baby को हम क्या बोलते हैं? Calf. And the plural of calf is F को remove करके हम क्या लगा देते हैं? VES. Okay. Yes, so singular is calf and plural is calves. And the meaning of calf is baby of cow. And goats. Okay, goats you know? Yes. Live in a special den inside the house. Den कैसे होती है? एक गुफा की तरह होते हैं. तो एक स्पेशल den बनाई जाती है ना? उसी घर के अंदर आपकी मसाई फैमिली के पूरे मेंबर्स होते हैं, मदर, चिल्ड्रन, फादर, एंड वहीं पर एक कॉर्नर में एक डैन बना दिया जाता है, वहां उनके कैटल मतलब एनिमल्स रहते हैं. दे ड्रिंक मिल्क इन अ लॉन्ग वेसल कॉल्ड कलाबाश मेड फ्रॉम हॉलोड आउट गॉड. यस, तो अब वो मिल्क कैसे पीते हैं? ठीक है, दे ड्रिंक मिल्क इन अ लॉन्ग वेसल.
एक लॉन्ग वेसल होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, कलाबाश. लुक, कलाबाश. यस. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कलाबाश? एक जो लॉन्ग या राउंड फ्रूट होता है उसको क्या करते हैं, उसके जो अंदर का जो मटेरियल है उसको निकाल देते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आप कोकोनट ले लीजिए, बॉटल गॉर्ड. ठीक है. लौकी आपकी या कोकोनट, उसकी जो हम अंदर की स्किन को या अंदर के मटेरियल को निकाल देते हैं और उसकी हार्ड स्किन जो बन जाती है एक वेसल की तरह वर्क करती है, एक बिग लॉन्ग वेसल. ठीक है. तो उसमें ही वो क्या करते हैं, मिल्क पीते हैं. डन. सो दिस इज ऑल अबाउट योर Masai's family. Yes. So word meanings: traditional. Traditional means following ideas or methods that have existed, stayed alive for a long time. पारंपरिक. ठीक है. तो ऐसी मेथड और आइडियाज जो कि लॉन्ग टाइम से चले आ रहे हैं, जैसे आपकी फैमिली की भी कुछ ट्रेडिशंस होते हैं, है ना, कल्चर होते हैं उसके, जो लॉन्ग टाइम से कि ऐसे ही रहना है. जैसे कि क्या होता है फैमिली के ट्रेडिशन में, क्या क्या आता है, कभी कभी किसी फैमिली में जैसे लेडीज को क्या करना होता है, घूंघट लेना होता है. तो ये क्या होता है, उनका ट्रेडिशन होता है. क्यों? क्योंकि पहले टाइम से वो, लॉन्ग टाइम से वो चला आ रहा था. सो इट इज कॉल्ड पारंपरिक. प्लेन्स. प्लेन्स मीन्स लार्ज एरिया ऑफ फ्लैट ड्राई लैंड. अंडरस्टूड. ट्विग, अ स्मॉल वेरी थिन स्टेम. पैक. Packing, you understand, to fit a lot of something into a space. छोटे से स्पेस में बहुत सारी अच्छी सी चीजें, बहुत सारा सब कुछ भर दो. ओके, दैट इज अ पैक. मॉइस्ट मीन्स स्लाइटली वेट. हम बोलते हैं ना आज का वेदर मॉइस्ट है, आज का वेदर कैसे है, थोड़ा नमी है. मोस्टली कब होता है ये, रेनी सीजन में होता है. ओके. हाइड, एन एनिमल स्किन रिमूव टू बी यूज्ड फॉर लेदर. एनिमल की स्किन को रिमूव करके जब हम लेदर की तरह यूज करते हैं. तो इन दिस चैप्टर इट वाज यूज्ड फॉर, यस, फॉर मेकिंग बेड. होलोड आउट. होलो मीन्स क्या होता है, खाली करना. टू मेक एन एम्प्टी स्पेस. एम्प्टी स्पेस बनाना. बाय रिमूविंग इनर पार्ट ऑफ समथिंग. किसी चीज के अंदर के पार्ट को रिमूव कर देना और एक एम्प्टी स्पेस बना देना, उसको हम क्या बोलते हैं, होलो. ओपनिंग, अ होल और स्पेस इन समथिंग. किसी भी चीज में ओपन मीन्स क्या होता है, ओपन मीन्स खुला हुआ. तो एक ऐसा ओपनिंग मीन्स भी वही होता है कि ऐसा ओपन स्पेस जिसमें से आपकी लाइट, एयर, ऑब्जेक्ट्स क्या कर सके, पास कर सके. ओके, अंडरस्टूड. यस. सो नेक्स्ट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. कंप्लीट द टेबल अबाउट अ मसाई हाउस. यस. सो आपको ये टेबल कंप्लीट करना है मसाई हाउस के बारे में. तो हु मेक्स इट, कौन बनाता है मसाई हाउस? यस, मसाई women. ओके. हाउ इज इट मेड? सो यू हैव टू आंसर. कैसे बनता है? ब्रांचेस, twigs and grass, dung. Number of rooms? Yes, I have explained. Only one room is there. Number of people? Almost 6 people. Number of windows? Is there any window? No, no window, है ना. Number of openings? Openings कितनी थी? 1. Understood the chapter? Yes. Next question. Complete the table. In a Masai house, where do you find these? Okay. मसाई हाउस में आपको ये चीजें कहाँ मिली थी? वेयर डू यू फाइंड दीज? तो फर्स्ट आपको किचन कहाँ था? इन द सेंटर ऑफ द हाउस. ओके, इन द सेंटर ऑफ द हाउस देयर वाज अ फायर प्लेस, और वही क्या था? किचन. स्पेशल डेन. डेन कहाँ था? और डेन में कौन रहते थे? कैटल. सो इनर कॉर्नर ऑफ द हाउस. हाउस का जो एक इनर कॉर्नर था वहां पर क्या थी? आपकी स्पेशल डेन. प्लेस फॉर स्लीपिंग. स्लीपिंग के लिए प्लेस क्या था? अ लार्ज बेड. ओके, सो डन क्लास. नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड. ब्रांचेस आर यूज्ड बाय अ मसाई फॉर. अब ब्रांचेस का क्या, कहाँ कहाँ यूज किए थे वो लोग? ओके, जस्ट लेट मी नो. कैन यू टेल मी द आंसर?
ब्रांचेस आर यूज्ड फॉर टू मेक हाउस। एक तो हाउस बनाने के लिए ब्रांचेस का यूज किए थे। कब? जब उनको रेक्टेंगुलर फ्रेम स्ट्रक्चर बनाना था, उसका घर बनाने के लिए उनको रेक्टेंगुलर फ्रेम डिजाइन करना था, तो ब्रांचेस और ट्विक्स का यूज किए थे। एंड नेक्स्ट इज ब्रांचेस आर यूज्ड फॉर टू मेक बेड। बेड बनाने के लिए भी वो लोग ब्रांचेस यूज किए और उसके ऊपर क्या कर दिए? हाइड। हाइड से उसको कवर कर दिए। यस। नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। वेयर डू द मसाई वुमेन स्लीप? मसाई वुमेन कहाँ सोती थी? ओके, या कहाँ सोती है? वेयर डू, यस डू। ओके, सो आंसर विल बी द मसाई वुमेन sleep in an inner corner of the house with their children. Where do the Maasai women sleep? The Maasai women sleep in an inner corner of the house with their children. Next question. Why do they keep the fire burning in their house? Give 3 reasons. Meaning, वो हमेशा फायर को जलते हुए क्यों रखते थे? Keep burning. गिव मी 3 रीजंस। तो मैंने बताया था आपको 3 रीजंस आर, फर्स्ट वाज लाइट एंड वार्मथ एंड थर्ड वाज कुकिंग। सो हाउ टू राइट द आंसर? दे कीप द फायर burning in their house. The reasons are, the 3 reasons are following. First, for cooking, second, light, and third, for warmth. Done? Next question. Look at the shapes given below carefully and match them with descriptions. So, it's very simple. So, you have to do. Can you tell me the first shape? It is a rectangle. Second is triangle. Third is circle. And fourth is a square. So, you can match them properly. I know you can do it very well. Next question. Vocabulary. Okay. It is also the part of vocabulary. So it is second and it is first question. Complete the verb. Complete the verb. Write the names of the vessel in your own language too. Yes. So आपको एक वेब डिजाइन करना है जिसमें आपको क्या लिखना है? नेम्स ऑफ वेसल in your own language too. For example, parts of a tree used as vessels or to make vessels for keeping food or having food. आपको ट्री के ऐसे पार्ट्स के नाम लिखने हैं जो वेसल्स की तरह, बर्तनों की तरह यूज होते हैं, या तो उसमें हम रख सकते हैं, ठीक है, कीपिंग करने के लिए फूड को, या फिर फूड को सर्व करने के लिए, या फूड को हैविंग फूड। गेटिंग? सो बनाना लीफ। बनाना लीफ किस लिए यूज होती है? यस, टेल मी। बनाना लीफ में हम क्या करते हैं? फूड सर्व करते हैं फॉर हैविंग फूड। नेक्स्ट एग्जाम्पल, टेल मी। और कौन से हमने चैप्टर में भी पढ़ा? यस, कलाबश। सो कलाबश किस लिए यूज होता है आपका? हैविंग फूड। उसमें भी हम क्या करते हैं? फूड सर्व करते हैं। आपको पानी पीने के काम आ सकता है, वो कोई भी जो आपका लिक्विड मटेरियल उसको ड्रिंक करने के। ओके, सो this verb you have to complete properly. So in this way you can complete the chapter. Yes, one more question is there. Third, make as many words as you can from the given word and write them in your notebook. This is the given word. ये जो आपको वर्ड मिला है, इससे आपको इन्हीं लेटर से और भी वर्ड्स बनाने हैं, और आप एटलीस्ट कितने वर्ड्स बना सकते हैं? 21 वर्ड्स। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ वर्ड ट्रेडिशनल। सो TRADITIONAL, ठीक है, इसके लेटर से ही आपको अदर वर्ड्स डिजाइन करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई वर्ड लूँ तो और क्या बन सकता है? NATIONAL. First word is NATION.
N-A-T-E. Wait. First word is N-A-T-I-O-N. Nation. इन्हीं लेटर से बनाए मैंने. सेकेंड वर्ड क्या हो सकता है आपका, बताइए आप. सेकेंड वर्ड, यस, नेशन हुआ. अब टी से कोई वर्ड बना लेते हम. टी आर आई भी है इसमें, ए भी है, एल. ट्रायल. नेशन, ट्रायल, national. So you have to make at least 21 words. I think you can make more than 21 words also. Okay? Yes. One more word is there. Radiation. R-A-R-A-D-I-A-T-I-O-N. Radiation. Yes. One more word is there. R-A-D भी है, I-O. Radio. So I have made 5 words for you. Rest you can do yourself. Okay class? So you can do this easily. So we have completed the chapter. If you have any doubt, don't forget to ask me.